Okay, good morning, students. Today we are going to start with the first topic of history, standard 10th, that is historiography, development in the West. So in today's topic, when we are studying historiography, so basically general introduction I'll give you about the lesson first. And what do you mean by the word development in the West, historiography? What does this word, these particular topic, it means? So historiography, development in the West is a chapter which tells us how historiography has been developed in the Western countries. How history has been developed in the Western countries. Now, what is historiography? It is the writing of the critical historical narrative, which means that it is the writing of history in a very precise manner. So what do you mean by the word historiography? That whatever you are going to study, you have to take minute things, the critical, the important historical narratives, whatever happened, narration, whatever happened during that time. Okay, and it means that the writing of the history is in a very precise manner, in a very perfect manner. Each and everything you have to take it into account by critically examining, and critically by you have to examine it, okay, step by step, and very minutely you have to examine by various historical sources. So different types of historical sources will be there, written, oral, okay, and what is going to happen and what happened during that time, how it happened, and then again you have to get the narrative things you are going to get, and you have to exactly find out, the historians have to find out, and they have to write everything everything in a very perfect way. Okay, at the beginning we will be looking at some methods of historical research. Okay, in the beginning we are in the lesson, when we are going to study the lesson, we will be looking at some methods of historical research, and then we will see how various narratives, like in the form of songs, plays, poems, became a historical source. So automatically this, whatever we are going to study through the history, like they used to sing songs about the valors, about the bravery of great kings. Okay, you will get a lot of poems, plays, and this will be a source of history to that. Later on in this lesson, we will see how scientific perspective developed in historiography, and how scientific perspective views, okay, what were the perspectives of in historiography in Europe, and some opinion of notable scholars. And we have in this lesson few scholars. And what are the notable scholars? Notable means noteworthy, means they are a great scholars, and how they have defined this history. Okay, they are writing about this historiography. And lastly, we will see how women played an important role in the history, and what was the role of women, because when we study Indian history or any other history, it is always male dominated. But now, since the books have changed, and more about the women's, like the role, it is a very crucial role, very important role, which is played by the women. Okay, the role which is played by the women in this history. And let's see, we'll move on and we'll find out a lot of things. Okay, this is just an introduction, so please go through it. We are going to go further. Okay, now moving ahead, first of all, I'll tell you kids that whenever you are studying history, okay, in this books, okay, there are very tough words. और अगर आपको ये टफ वर्ड्स की मीनिंग ही नहीं मालूम है, तो यू वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड, आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या करना है. तो सबसे पहले अपना पेंसिल और जो भी है पेन, वो निकालो, और जो मीनिंग्स मैं बोलूँगा वो लिखते रहो साथ में. बिकॉज अनलेस एंड अनटिल यू डोंट नो द मीनिंग्स, इट इज़ ऑफ नो यूज स्टडिंग द टॉपिक. शब्द आएंगे, मतलब आएगा, तभी हम लोग ये आंसर स्कोर अच्छा कोई भी टॉपिक के बारे में हम लोग लिख सकते हैं. ओके, तो मूविंग अहेड, द फर्स्ट पार्ट इज हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड. अभी हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड में रिसर्च करना है. कोई भी हिस्टोरिकल इवेंट्स हुए हैं तो रिसर्च करेंगे और उसको प्रूव करेंगे कि वाकई में ये हादसे हुए थे क्या नहीं, या जो भी घटनाएं हुई थी, राजा महाराजाओं की कहानियों के बारे में, किसी भी राजा के बारे में जानना है, या कोई भी यूरोपियन लीडर्स के बारे में, ओके, उन्होंने क्या क्या ग्रेट काम किए. तो इसी के लिए हमको ये जो टॉपिक है, ओके, दैट इज हिस्टोग्राफी डेवलपमेंट इन द वेस्ट, व्हाट वी आर गोइंग टू डू. So first point what we are going to take in this topic is historical research
writing and studies are carried out with an objective of understanding the chronology. So historical research, writing and studies, okay, ये हम लोग कब carry करते हैं? It is carried on by, they have an objective that you have to understand the chronology. The meaning of chronology is what? That is, chronology is what? Arrangements of events or dates. Okay, arrangement of events or dates in order of the occurrence. इन ऑर्डर ऑफ द अकरेंस मतलब डेट्स और इवेंट्स को अरेंज करना है और उसको बताना है कि ये चीज़ें कब अकर हुई थी, कब कब ये चीज़ें हुई थी. तो सबसे पहले वो होना चाहिए कि कोई भी डेट या कोई भी इवेंट, कोई भी हादसे जब होते हैं तो क्या करना है, सीक्वेंस वाइज बराबर से उसको एक सीक्वेंस में हमको बराबर लिखना है जो हादसे, पास्ट इवेंट्स एंड देयर इंटरकनेक्शंस, और उसका कनेक्शंस होना ज़रूरी है. एक ही राजा है और उसने ये पर्टिकुलर उसका जन्म के बाद उसका चाइल्डहुड के बाद उसका यंग एज, मतलब उन्होंने अलग अलग चीज़ें कब कब क्या क्या किया था, तो उसको बोलते हैं क्रोनोलॉजी. क्या बोलते हैं? क्रोनोलॉजी. ओके, एंड दिस इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस, एंड दिस इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस, स्टेप बाय स्टेप. ये क्या है? ये प्रोसेस क्या है? कंटिन्यूस वे में रहता है. जब तक उस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में या उस पर्टिकुलर हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट के बारे में या हिस्टोरिकल कैरेक्टर के बारे में हम लोग क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर प्रोसेस को क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप पढ़ते रहते हैं और हर चीज़ उससे इंटरकनेक्टेड रहती है. ओके, सेकेंड पॉइंट इज एम्फेरिकल. जस्ट मार्क द मीनिंग एम्फेरिकल, एंड दैट इज व्हाट? वेरीफाइबल मेथड. वेरीफाइबल मेथड, वेरीफाई करने का. ओके, एम्फेरिकल मेथड बोलेंगे तो वेरीफाई करने का, प्रूव करने का कि वाकई में ये चीज़ हुई थी क्या नहीं. एंड इट इज़ यूज्ड इन फिजिकल एंड नेचुरल साइंस. तो एम्फेरिकल मेथड कहाँ पे यूज़ करते हैं हम लोग? इसको फिजिकल और नेचुरल साइंस में यूज़ करते हैं टू वेरीफाई द अवेलेबल नॉलेज. और जो भी अवेलेबल नॉलेज है उस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में, उस हिस्टोरिकल इवेंट के बारे में, उसको हम लोग क्या करते हैं, हमको वेरीफाई करना. दिस मेथड अलाउज टू फॉर्मुलेटिंग लॉज. नाउ फॉर्मुलेटिंग, टेक द मीनिंग ऑफ फॉर्मुलेटिंग, दैट इज क्रिएट और प्रिपेयर इन अ सिस्टमेटिक मैनर. क्रिएट करना और उसको प्रिपेयर करना एक सिस्टमेटिक मैनर में. एक मैनर होता है, करने का ढंग होता है, एक रीत होती है. तो हम लोगों ने उसको कैसे क्रिएट किया है और कैसे हम लोगों ने उसको प्रिपेयर किया है. क्या किया है? लॉज. फॉर्मुलेटिंग व्हाट? क्रिएटिंग लॉज दैट रिमेन ट्रू टू देयर इररिस्पेक्टिव. इररिस्पेक्टिव बोलेंगे तो क्या होता है? रिगार्डलेस और नॉट टू कंसीडर. ओके, दैट इज नॉट टू कंसीडर. ओके, इसका मीनिंग लिख लो, नॉट टू कंसीडर ऑफ द टाइम एंड स्पेस. So you cannot consider what? You cannot consider the time and space which can be tested and proved repeatedly. और उसको हम लोग उस टाइम में नहीं थे, हम लोग उस स्पेस में नहीं थे, उस जगह पे नहीं थे, लेकिन फिर भी ओके, आज जो 100 साल पहले हुआ, ओके, तो हिस्टोरियंस नहीं बताया, तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, हम उसको टेस्ट कर सकते हैं और हम उसको प्रूव कर सकते हैं रिपीटेडली. बार बार हम उसको क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं. और क्योंकि उस टाइम एंड स्पेस में हम नहीं थे, ओके, फिर भी हमको ये टेस्ट और प्रूव करना हिस्टोरियंस को बहुत ज़रूरी है. ओके, हिस्टोरिकल रिसर्च में नॉट पॉसिबल टू यूज़ द मेथड ऑफ लेबोरेटरी. और हिस्टोरिकल रिसर्च में नॉट बी पॉसिबल. ओके, may not be possible for what? May not be possible to use the method of laboratory. तो लेबोरेटरी का मेथड पॉसिबल नहीं है, ऐसे हिस्टोरियन मानते हैं. ओके, लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशन, बिकॉज वी वर नॉट प्रेजेंट इन द हिस्टोरिकल टाइम एंड स्पेस. वापस से हम उस पर्टिकुलर हिस्टोरिकल टाइम में और उस पर्टिकुलर स्पेस में नहीं थे, या जब वो घटना हुई थी. ओके, दैट इज हिस्टोरिकल इवेंट्स कैन नॉट बी रिक्रिएटेड, एंड दैट वी कैनॉट से दैट हम लोग उस टाइम और स्पेस में नहीं थे और वापस से उसको हम लोग रिक्रिएट करना चाहते हैं, तो जो नामुमकिन है, दैट इज नॉट पॉसिबल. ओके, रिक्रिएट इज नॉट पॉसिबल टू फॉर्मुलेट लॉस दैट रिमेन ट्रू इररिस्पेक्टिव ऑफ टाइम एंड, और वो हमेशा ट्रू रहेंगे भले ही हम लोग उस टाइम में नहीं थे, स्पेस में नहीं थे, लेकिन हिस्टोरिकल एविडेंस बताते हैं क्या कि वो चीज़ें हुई थी, ऐसी घटनाएं हुई थी, तो हमको मानना पड़ेगा. ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, दैट इज हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड. अभी हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड हम लोग करते हैं, दैट इज फर्स्ट पॉइंट इज एक्सपर्ट इज नीडेड हु नोज ऑल लैंग्वेजेस. अब इसके लिए एक हिस्टोरिकल एक्सपर्ट चाहिए होता है जिसको सब लैंग्वेजेस आती है, एंड स्क्रिप्ट ऑफ अ
हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट टू रीड एंड अंडरस्टैंड इट्स मीनिंग, और वो स्क्रिप्ट पढ़ना, ओके, वो लैंग्वेज पढ़ना, उस पर्टिकुलर हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट, जो भी हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट जो है, ओके, जो पुराने पुराने डॉक्यूमेंट्स है, उसकी जो भाषा है जो लिखी हुई है, उसको एक हिस्टोरियन ने क्या करना चाहिए, रीड करना चाहिए और अंडरस्टैंड करना चाहिए उसका मीनिंग, जैसे कि आप लोग कर रहे हो, है ना। इस टेक्स्ट बुक में डिफरेंट डिफिकल्ट वर्ड्स है और जो स्क्रिप्ट में लिखे गए हैं इंग्लिश के अंदर, तो इंग्लिश की स्क्रिप्ट के अंदर अगर आप लोगों को इंग्लिश बराबर से नहीं आएगा, टफ वर्ड्स नहीं आएंगे, तो यू वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड, you won't get anything, okay, you will be just reading for the namesake, but finally when you have to write, you should get and you can use the other words, okay. Second, examine the authenticity of a document. So when I talk about the word authenticity, so just write the meaning, kids. Authenticity is what? The genuinity, that originality. Authenticity is what? Originality. मतलब originality मतलब कि वो डॉक्यूमेंट रियल ओरिजिनल है या फेक है या झूठा है, तो एग्जामिन करने का वो डॉक्यूमेंट को इज यूजिंग क्राइटेरिया सच एज लेटर स्टाइल। क्राइटेरिया लिखो, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड क्राइटेरिया? दैट इज क्राइटेरिया, राइट, बेसिस ऑन विच समथिंग इज जज्ड। तो ऑथेंटिसिटी, ओरिजिनलिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट के ऊपर ही हम लोग जज करेंगे, ओके। जैसे कि लेटर स्टाइल, ऑथर स्टाइल ऑफ राइटिंग, मतलब लेटर स्टाइल क्या, उसका अक्षर का जो लिपि है, लिखने का ढंग वो कैसा है। ऑथर स्टाइल ऑफ राइटिंग क्या है, जो ऑथर है, जो पर्टिकुलर जो उसका लेखक है, वो कैसे वो चीज़ें लिख रहा है। मैन्युफैक्चरिंग डेट एंड टाइप ऑफ पेपर स्टैम्प्स ऑफ ऑथेंटिसिटी, और उसका जो पेपर स्टाइल है और उसका जो ऑथेंटिसिटी, ओरिजिनलिटी है, जो स्टैम्प पेपर्स है, जो पेपर है, वो कितने साल पुराना है, उसके बारे में भी हम लोग जज करेंगे, ओके। नेक्स्ट, डॉक्यूमेंट इज स्क्रूटनाइज्ड। तो राइट डाउन, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड स्क्रूटनाइज? स्क्रूटनाइज बोलेंगे तो एग्जामिन्ड, ओके, दैट इज एग्जामिन्ड केयरफुली, उसको बराबर एग्जामिन करना है। कैसे एग्जामिन करोगे? बराबर से उसको पढ़ोगे, ओके। हिस्टोरियंस क्या करते हैं, उसको बराबर से, कोई भी डॉक्यूमेंट को बराबर से पढ़ते हैं। दे आर रेड बाय द हिस्टोरियंस विद द हेल्प ऑफ द रेलिवेंट हिस्टोरिकल रेफरेंसेस। रेलिवेंट लिखो, रेलिवेंट व्हाट डू यू मीन बाय? दैट इज रेलिवेंट इज रिलेटेड टू, मीन्स ये हिस्टोरिकल जो भी डॉक्यूमेंट्स है जो स्क्रूटनाइज करते हैं हिस्टोरियन, वो क्या है, वो रिलेटेड होने चाहिए। और किससे? जो रेफरेंस उस चीज के बारे में मिले हैं, रेफर करेंगे, ओके। किसी भी हिस्ट्री के बारे में जो कोई भी इवेंट है या जो भी हादसे जो हो चुके हैं, तो उसके बारे में ये लोग क्या करते हैं, चेक करते हैं, स्क्रूटनाइज करते हैं। और कैसे करते हैं? विद हेल्प ऑफ जो भी रेलिवेंट हिस्टोरिकल रेफरेंसेस है उससे। नेक्स्ट, मेथड ऑफ वेरियस डिसिप्लिन्स आर यूजफुल इन हिस्टोरिकल रिसर्च। बहुत सारे डिसिप्लिन्स बहुत जरूरी है, अलग अलग वेरियस डिसिप्लिन्स है हिस्टोरिकल रिसर्च में, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे नीचे दिया गया है, दैट इज व्हाट? आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी बोलेंगे तो क्या होता है? तो आर्कियोलॉजी का जब हम मीनिंग निकालते हैं तो वी से, जस्ट राइट इट डाउन, दैट ओके, दैट आर्कियोलॉजी से आर्कीवल साइंस। So one by one you take. Archaeology is what? Study of human history through excavation of sites. तो आर्कियोलॉजी का मतलब क्या है? लिखो सब बच्चे लोग, स्टडी ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। हम ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं। कैसे पढ़ेंगे? ओके, मोहनजोदड़ो हड़प्पा सिविलाइजेशन, तो कैसे अलग अलग चीजें हुई है, तो ह्यूमन हिस्ट्री थ्रू एक्सकावेशन। कोई भी साइट पे जाएंगे, ओके। जैसे मैंने साइट बोला तो एक एग्जांपल दे दिया मैंने, मोहनजोदड़ो का दे दिया, हड़प्पा का, हड़प्पन वैली सिविलाइजेशन का दे दिया, या ग्रीक वैली सिविलाइजेशन, ओल्ड जो सिविलाइजेशन है, अगर हमको उसके बारे में जानना है, ये साइट्स के बारे में जानना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? हमको उसकी ह्यूमन हिस्ट्री को क्या करना पड़ेगा? एक्सकावेट करना पड़ेगा। इसी के लिए उसको बोला है आर्कियोलॉजी। क्या बोला है उसको? आर्कियोलॉजी। नेक्स्ट इज व्हाट? आर्कीवल साइंस। आर्कीवल साइंस इज व्हाट? लिखो सब बच्चे लोगों को, आर्कीवल साइंस क्या है? Study of building archives, okay, study of building archives. And what is archives? What is archives? Archives is collection of historical documents, और historical documents और जो उसके recordings, जो उसका collection है, उसको क्या बोला है? आर्कीव। क्या बोला है उसको? आर्कीव्स। तो इसके लिए इसके दिया है, आर्कीवल साइंस का दिया है, स्टडी ऑफ बिल्डिंग आर्कीव्स। और आर्कीव्स मतलब, आर्कीव्स वो जगह है जहाँ पे सारे के सारे हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स रखे जाते हैं, ओके। कोई भी चीज हो, या कोई भी मॉन्यूमेंट हो, या कोई भी इंसान हो जो पुराने ज़माने में जिसने ग्रेट परफॉर्म किया है, तो उसके बारे में
बहुत कुछ लिखा हुआ रहता है, और वो लिखा हुआ उसके डॉक्यूमेंट्स और उनको संभाल के क्या करते हैं, एक लाइब्रेरी के जैसा जो ये रहता है उसको हम लोग बोलते हैं आर्कीव। क्या बोलते हैं? आर्कीव। ओके, तो देन वी हैव मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी। तो मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी मतलब लिखो क्या है मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी? दैट इज स्टडी ऑफ मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी, दैट इज स्टडी ऑफ हिस्ट्री एंड लिटरेचर। मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी स्टडी ऑफ हिस्ट्री एंड लिटरेचर थ्रू यूज ऑफ हैंड रिटन डॉक्यूमेंट्स। ओके, और थ्रू हैंड रिटन, हाथ से लिखा हुआ, हाथ से लिखा हुआ होना चाहिए। ओके, क्या? हिस्ट्री एंड लिटरेचर। हिस्ट्री और या लिटरेचर ले लो। लिटरेचर तो अगर तुम बोलोगे तो क्या है? रहीम के पद, मीरा, ओके, कबीर, तो ये सब क्या है? लिटरेचर है, ग्रेट राइटर्स है जिन्होंने लिखा है। ओके, और उस समय ना, तो उस टाइम में तुम भी नहीं थे, हम भी नहीं थे, स्पेस नहीं था उस समय, वो स्पेस में हम लोग भी प्रेजेंट नहीं थे, फिर भी ओके आर्कीव्स के अंदर ऑल दिस इज प्रिजर्व्ड, ये सब के सब रखा हुआ है। इसी के लिए हम लोग को बड़ा प्रूफ है कि ये सब चीजें हुई थी, ये सब मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी। okay, that was there because it is all the documents which are collected and kept there. Next is what? Epigraphy. Okay, that epigraphy, that is study of inscription. Study of inscription is what? Carving. Inscription is what? Carving. Carving जो किया हुआ रहता है, दीवारों पे किया हुआ रहता है बहुत सारे। अगर तुम हिस्टोरिकल साइट्स पे गए हो तो वहां पे तुम्हारे को ये कार्विंग्स दिखाई देगी। ओके, देन यू हैव एनालिसिस ऑफ लेटरिंग स्टाइल। और लेटरिंग स्टाइल को एनालाइज करना, स्टडी करना, एनालाइज बोलेंगे तो स्टडी करना। ओके, दैट इज कॉल्ड लेटरिंग, एनालाइजिंग ऑफ लेटरिंग स्टाइल। देन यू हैव लिंग्विस्टिक। ओके, लिंग्विस्टिक, जनरली व्हेन वी टॉक अबाउट लैंग्वेज, स्टडी ऑफ लैंग्वेज। लिंग्विस्टिक इज व्हाट? स्टडी ऑफ लैंग्वेज। देन यू हैव न्यूमिस्मैटिक्स। न्यूमिस्मैटिक्स इज व्हाट? स्टडी ऑफ कॉइन्स। देन यू हैव जियोनोलॉजी। जियोनोलॉजी इज व्हाट? स्टडी ऑफ लिनिएज। अभी लिनिएज का मीनिंग लिखो सब जगह। लिनिएज क्या होता है? दैट इज फैमिली हिस्ट्री। एंसेस्ट्रल, एंसेस्ट्रल मतलब बाप दादाओं की पीढ़ी दर पीढ़ी जो चीजें हुई थी, राजा महाराजाओं के जो पुराने दादा, उसके परदादा, उसके बारे में सब बताया, तो उसको बोला है जीनियोलॉजी। स्टडी रिगार्डिंग द जीन्स, लाइक नो जीन्स के बारे में पढ़ते हैं कि यस पहले यही पर्टिकुलर राजा का जो पिताजी थे उन लोगों ने क्या किया, और फिर उसके पिताजी के पिताजी ने क्या किया। दैट इज स्टडी ऑफ lineage. Okay, so just go through the hard words and write out the meanings. Okay, okay, now when we are studying that historical research method, so a systematic diagram thing is given in which it is told that when a historian is writing, okay, a narration about a historical narration, what your 6 points are given. So what things he has to remember. Okay, so studying step by step, हम लोग step by step पढ़ते हैं क्या क्या चीजें होनी चाहिए। फर्स्ट थिंग इज व्हाट? पहला चीज, कलेक्टिंग हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन। कोई भी नरेटिव, हिस्टोरिकल नरेटिव लिखने से पहले ओके हिस्टोरियन को क्या करना पड़ेगा? जो भी हिस्ट्री हिस्टोरियन है उसको कलेक्ट करना पड़ेगा, सारी की सारी हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन करनी पड़ेगी, हाईलाइटिंग द processes that leads to a historical transition. Transition is what? तो transition का meaning, transition is what? Change. क्या है transition का meaning? Transition का meaning है change. तो कोई भी change ओके जो हिस्ट्री में के अंदर चेंज लेके आ रहा है उसको सब चीजें याद रखनी पड़ेगी कि हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन को हाईलाइट करना पड़ेगा, और क्या क्या प्रोसेस हो रहा है उसके अंदर, क्या क्या हिस्टोरिकल चेंजेस हो रहे हैं, कैरिंग आउट कंपैरेटिव एनालिसिस। और वो कंपैरेटिव एनालिसिस स्टडी करेगा और भी उसी चीज़ों के बारे में, और उसको एक स्टडी में फाइनल डिसीजन लाना पड़ेगा कि इसके अंदर क्या चीज़ें बराबर है और क्या चीज़ें बराबर नहीं है। ठीक, इसके लिए लिखना पड़ेगा। ये पहला पॉइंट है किसका? हिस्टोरिकल। ये तुमको बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए आता है। वेब करके देंगे, यही पैटर्न में देंगे, इसमें तुमको कोई भी 4 पॉइंट्स तुमको याद करने के 2 मार्क्स के लिए। ओके, तो सेकेंड इज व्हाट? दूसरा वाला है अंडरस्टैंडिंग द रेफरेंसेस। हिस्टोरिकल नरेटिव कोई भी नरेशन करेगा तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? अभी इस पॉइंट के अंदर अंडरस्टैंडिंग द रेफरेंसेस रिगार्डिंग टाइम एंड स्पेस ऑफ द गिवन हिस्टोरिकल इवेंट। तो कोई भी हिस्टोरिकल इवेंट है तो याद रखना पड़ेगा उसका रेफरेंस, जो भी वो चीज़ें ले रहा है तो वो टाइम एंड स्पेस को मैच कर रही है क्या नहीं, उस समय को और उस जगह को मैच करना बहुत ज़रूरी है। एंड ऑल्सो वेरियस कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क्स। कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क्स क्या होता है? कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बेस्ड होता है।
दैट इज आई कैन से एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज। बट एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज क्या, कंसेप्चुअल का मीनिंग लिखो सब बच्चे लोग, क्या होता है कंसेप्चुअल मतलब, दैट इज कंसेप्चुअल लिखो बेस्ड ऑन एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज। और एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज बोलेंगे तो नॉट फिजिकल थिंग, ओके, ओनली आइडियाज, फिजिकल थिंग नहीं है, ओनली क्या है, आइडियाज है, यूज्ड इन हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड। और ये सब की सब कहाँ पे यूज किया जाता है, कहाँ पे प्रयोग में लेके आया जाता है, हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड में। कोई भी रिसर्च करना है हिस्ट्री के बारे में, हम उस टाइम एंड स्पेस पे नहीं थे, बट जो भी इवेंट्स जो भी हादसे हुए हैं उसको क्या करना पड़ेगा, उसको हमको कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क में लाना। नेक्स्ट इज व्हाट, नेक्स्ट इज हिस्टोरिकल नैरेटिव का तीसरा पार्ट क्या है, फॉर्मुलेटिंग रेलेवेंट क्वेश्चंस, रेलेवेंट रिलेटेड टू, रेलेवेंट क्या है, रिलेटेड टू, ओके। और फॉर्मुलेटिंग हमने पहले भी पढ़ा है, रेलेवेंट का लिखो मीनिंग, रिलेटेड टू, ओके। और फॉर्मुलेटिंग मतलब क्या है, क्रिएट और प्रिपेयर बाय मेथड, प्रॉपर मेथड से क्रिएट करना है, और क्या करना है, क्रिएट करने के बाद रिलेट करना है क्वेश्चंस इन व्यू ऑफ द हिस्टोरिकल रेफरेंसेस। और कोई भी क्वेश्चंस जो हिस्टोरिकल रेफरेंसेस से मैच होते हैं, क्वेश्चंस डिग आउट करने पड़ेंगे, और वो क्वेश्चंस क्या बनाएंगे तुम्हारा, वो हिस्टोरिकल नरेशन, जो भी नरेट करने वाले हो, जो भी लिखने वाले हो, उसको मैच तुम्हारे, ओके। नेक्स्ट इज व्हाट, अगेन फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस, अगेन फॉर्मुलेटिंग, यू शुड नो द मीनिंग, दैट इज क्रिएट और प्रिपेयर, क्रिएट और प्रिपेयर क्या, हाइपोथेसिस, थीसिस मतलब क्या है, थ्योरी, और थ्योरी कौन सी वाली थ्योरी, दैट इज थ्योरी ऑफ अजम्पशन, अज्यूम करने का, सपोज करने का, ओके। प्रपोज्ड एक्सप्लेनेशन मेड ऑन द बेसिस ऑफ लिमिटेड एविडेंस, लिमिटेड, तुमको कोई भी लिमिटेड एविडेंस मिले, कोई भी हिस्टोरिकल नरेशन हुआ है, उसका तुम्हारे पास लिमिटेड एविडेंस है, एविडेंस प्रूफ, सबूत के बारे में थोड़ा बहुत सबूत है, तो तुमको क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर अजम्पशन करनी पड़ेगी, अजम्पशन करना पड़ेगा कि ऐसा हुआ था क्या नहीं हुआ था उस समय, ओके। और एक और पॉइंट तुम्हारा है नेक्स्ट वन, क्रिटिकली एग्जामिनिंग ऑफ वेरियस सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। अब क्रिटिकली एग्जामिन, क्रिटिकल मतलब फाइंडिंग फॉल्ट्स विद द आर्ग्यूमेंट्स, आर्ग्यूमेंट्स करना पड़ेगा कि तर्क वितर्क, कि क्या चीजें थी बराबर, क्या चीजें बराबर नहीं थी, और उसको एग्जामिन करना पड़ेगा वेरियस सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, और अलग अलग सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री से फाइंड आउट करना पड़ेगा कि जो भी ये हिस्टोरिकल नरेशन दूसरे हिस्टोरियन ने दिया है उसके अंदर आर्ग्यूमेंट्स होंगे, और एक परफेक्ट चीज बराबर एक नरेशन सामने आएगा। नेक्स्ट इज व्हाट, एग्जामिनिंग रेलेवेंट, रेलेवेंट रिलेटेड टू, ओके, रेलेवेंट रेफरेंसेस, रेलेवेंट रिलेटेड टू रेफरेंस, रेलेवेंट है, ये रेफरेंस रेलेवेंट है, बराबर है क्या नहीं, ऑफ द अवेलेबल हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन। और जो भी हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसका क्या करना पड़ेगा, उसका रेलेवेंट रेफरेंसेस ढूंढना पड़ेगा कि ये चीज़ें हुई थी, तो इसके रेफरेंस का, इसका प्रूफ होना ज़रूरी है कि वो हिस्टोरिकल नैरेटिव बन रहा है, हिस्टोरिकल हिस्ट्री उसको नरेट कर रही है, हिस्ट्री लिख रही है, ताकि आगे तुम लोग पढ़ोगे तो तुमको भी पता चलना चाहिए कि ऐसी ऐसी चीज़ें क्या हैं, हमें टेक्स्ट बुक में नरेट की गई है, लिखी गई है, तो ये बराबर है क्या नहीं, ओके। तो ये क्वेश्चन तुम्हारे को जब आएगा, तो दिस इज योर 2 मार्क क्वेश्चन, ओके। ये 2 मार्क के लिए तुम्हारा बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, सो you have to mark it important, okay, this particular part is very important, okay? Next one we are going to go through is tradition of historiography। अभी ट्रेडिशन देखते हैं, ट्रेडिशन ऑफ हिस्टोग्राफी क्या है, तो फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, द राइटिंग ऑफ क्रिटिकल हिस्टोरिकल नैरेटिव इज नोन एज हिस्टोग्राफी। का मीनिंग क्या है, हिस्टोग्राफी क्या है, राइटिंग ऑफ द क्रिटिकल हिस्टोरिकल नैरेटिव, हिस्टोरिकल नैरेटिव, नरेशन जब लिखते हैं हम लोग, हिस्टोरिकल, क्रिटिकल बोला है, फाइंडिंग फॉल्ट्स और आर्ग्यूमेंट्स जब हम लोग करेंगे तो ऑटोमेटिकली कोई ना कोई चीज़ें बराबर सामने, आर्ग्यूमेंट्स के थ्रू ही सामने चीज़ें बराबर से आती हैं, ओके, डिस्कशन होता है वहाँ, दैट इज नोन एज हिस्टोग्राफी। द इंक्लूजन एंड इंटरप्रिटेशन, व्हेन यू आर स्टडीइंग इंक्लूजन, दैट इज टू इंक्लूड एंड टू इंटरप्रिटेट, इंटरप्रिटेट इज व्हाट, दैट इज एक्शन ऑफ एक्सप्लेनिंग द मीनिंग ऑफ समथिंग। क्या है इंटरप्रिटेशन का मतलब, एक्सप्लेनेशन, दैट इज interpretation means action of explaining the meaning, explanation of meaning of something। तो किसी का भी action of explaining है, ओके, उस मतलब का, उसका मतलब क्या होता है, मतलब वो हिस्टोरिकल इवेंट इंटरप्रिटेट करना चाहिए और इंक्लूड करना चाहिए, ओके, किसको, इवेंट्स को, बाय हिस्टोरियंस ऑफन डिपेंड्स ऑन द कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क अडॉप्टेड बाय हिम। और एक हिस्टोरियन क्या करता है, डिपेंड होता है, इसके ऊपर डिपेंड होता है एक कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क
जो किसने बनाया है, उसने ही बनाया, अडॉप्टेड बाय हिम। ओके, और कंसेप्चुअल मतलब जो भी उसने आइडियाज बेस्ड किए और वो आइडियाज के ऊपर वो क्या करता है, एक फ्रेमवर्क बनाता है। नेक्स्ट, एंशिएंट पीपल फेल्ट द नीड ऑफ पासिंग ऑन द स्टोरीज ऑफ लाइफ एंड वैलर। वैलर, दैट इज, वैलर इज व्हाट, ब्रेवरी। वैलर का मतलब क्या है, ब्रेवरी। ओके, तो लिखो सब, वैलर मतलब ब्रेवरी, करेज। ओके, दैट इज कॉल्ड वैलर, ताकत। ऑफ द एंसेस्टर, मतलब पुराने ज़माने में जैसे शिवाजी महाराज, उनकी ब्रेवरी, उनकी ताकत कितनी थी, उसके बारे में पढ़ा है, उनके एंसेस्टर्स। और ये जो नॉलेज जो शेयर होती है वो जनरेशन टू जनरेशन, जैसे हमको भी मालूम है, हमने बहुत सारी बुक्स पढ़ी ग्रेट ग्रेट लीडर्स के बारे में, ग्रेट ग्रेट फ्रीडम फाइटर्स के बारे में, बहुत लोगों के बारे में पढ़ी, तो ऑटोमेटिकली जो इनका जो चीज़ें थी वो जनरेशन टू जनरेशन क्या हुआ, आगे आगे बढ़ता गया और सबको मालूम है। हम वो टाइम एंड स्पेस में नहीं थे, लेकिन बहुत सारे प्रूफ से, बहुत सारे एविडेंस है जिससे हमको मालूम पड़ता है, ग्रेट हिस्टोरियंस ने बताया है। ओके, तो स्टोरीज ऑफ द लाइफ एंड वैलर ऑफ द एंसेस्टर्स टू द नेक्स्ट जनरेशन, और हमारा जो आगे आने वाली पीढ़ी है उनको मालूम पड़ता है कि ये बहुत बहुत पुराने समय में हमारा जो इतिहास है, ओके, वो कैसा था। यूज्ड वेरियस मीन्स लाइक केव पेंटिंग्स। अभी इसको आगे लाने के लिए अलग अलग जरिए थे। ओके, क्या थे, यस, ये हिस्टोग्राफी जब सामने आई तो केव पेंटिंग्स के थ्रू से, जो अगर तुम बाहर घूमने गए हो तो तुमने देखा होगा। ओके, केव्स के वहाँ पे अलग अलग तरह का पोर्ट्रे किया गया है कि उस समय का जो सिस्टम था या कल्चर था वो कैसा हुआ करता था, उसके थ्रू भी मालूम पड़ जाता है, क्योंकि वो उस समय उधर के लोग बताते थे पेंटिंग्स के थ्रू। देन यू हैव लॉट ऑफ स्टोरी टेलिंग्स, स्टोरी ग्रेट ग्रेट लोगों के बारे में अगर गाँव में जाओगे तो ऑटोमेटिकली मालूम पड़ेगा कि बहुत साल पुराने टाइम में ऐसा ऐसा हुआ करता था, स्टोरीज के थ्रू लोग बताते हैं गाँव में। और सिंगिंग सॉन्ग्स, और सॉन्ग्स गाना गाया जाता है उनके ब्रेवरी के बारे में। और one more word is what, ballads. Ballads is, just mark this, ballads, that is, ballads is a what, a poem or a song narrating a story in short stanza. देखो सब जने, a poem or a song, a poem or a song narrating a story, किसी भी ब्रेव इंसान के बारे में, किसी भी ग्रेट इंसान के बारे में एक पोएम के थ्रू या एक सॉन्ग के थ्रू, क्या है, एक शॉर्ट स्टैंजा में। शॉर्ट स्टैंजा मतलब 3-4 लाइंस के अंदर उसके बारे में क्या करते हैं, उसके बारे में उसकी विशेषता बताते हैं, उसकी इंपॉर्टेंस बताते हैं कि यस उसने क्या किया था। ओके, दैट इज कॉल्ड द बैलेड। ओके, दीज टर्न्ड आउट टू बी सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। और ये टर्न हुआ, ये सब चीज़ें टर्न हुआ क्या, ये बनी सोर्स, किसकी सोर्स, हिस्ट्री की। ओके, जिसने हिस्ट्री को जन्म दिया इन द मॉडर्न हिस्टोग्राफी। एंड इन द मॉडर्न हिस्टोग्राफी ऑल दिस पर्टिकुलर थिंग्स, दैट इज केव पेंटिंग्स, storytelling, singing, songs and ballads. Okay, so they turned out to be the source of history.